السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں آپ کا بھائی مسعود پھر سے آپ کے سامنے مسعود خالد بلاگ لے کر آیا ہوں۔ آج ہم مدینہ منورہ کی فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہیں اور آج آپ کا بھائی کا موڈ ہے مطبخ کھانے کا۔ بھائی لوگ یہ دیکھیں مطبخ کیسے تیار ہوتا ہے۔ اس میں آٹے کی کورنگ ہوتی ہے جیسے پراٹھا بنتا ہے، پھر اس کے اندر دھنیا، ٹماٹر، گرین چلیز، قیمہ اور گرین اونین مکس ہوتے ہیں۔ جب بندہ یہ کھاتا ہے تو ایک دم مست ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس مطبخ کی کورنگ کے اندر کتنا سارا مال جمع کیا ہوا ہے۔ جب آپ اس کے بعد اس کو توے پہ رکھیں گے جیسے لچھے دار پراٹھے بنتے ہیں، اسی طرح پراٹھا تیار ہو جائے گا اور ایک دم چکاس مزیدار بن جائے گا۔ So السلام علیکم sir. This is a مطبخ place. What is the name of the place? Ulfat Rawani. And this has been open from last 14 years in Medina, right? Yes, right. It's very famous مطبخ place, right? Yes, of course. MashaAllah. And how many types of مطبخ you have? We open No, how many types of مطبخ you have? maybe 24 different. How much? 24 different, like sweet. Yeah, also we have masu banjarika. Okay, mashallah. So you have مطبخ for like keema, like you have for eggs, cheese, like different kinds Also of. sweet. Also sweet, huh? Nutella. Nutella. Oh, mashallah, mashallah. Jazakallah khair, brother. Very nice to meet you. Inshallah, may Allah give barakah in your restaurant. Ameen. پھر ساتھ میں ہم نے برابر والے پاکستانی ریسٹورنٹ سے سیخ کباب لیے۔ یہ دیکھیں آپ سیخ کباب کیسے تیار ہو رہے ہیں۔ جب ہوٹل میں واپس آ کر ہم نے یہ کھانا کھایا تو بہت ہی مزیدار کھانا تھا، بہت مزہ آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا شکریہ جتنا ادا کریں کم ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی مطبخ ٹرائی کر رہے ہیں۔ Let's hear how it is. زبردست، بچپن کی یاد تازہ ہو گئی۔ الحمدللہ ایک اور فجر کے لیے آئے حرم میں۔ یہ بنیامین میرے ساتھ ہے، ادھر آ۔ بنیامین نماز کے لیے آئے فجر کی، تہجد کے ٹائم میں ابھی آئے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا رش ہے کہ جس کی حد ہی نہیں۔ جس گیٹ سے مسجد داخل ہو جاؤ رش ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے بہت رحمت کر کیا ہوا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مدینے میں اس ٹرپ کی آخری فجر ہے۔ بس میرے بھائی لوگوں، آج میں مدینہ سے جا رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے نبی اپن جان تیرے نبی کے اللہ مجھے بار بار لا، یا اللہ مجھے بار بار آنا نصیب ہے۔ بیوی بچے میرے ابو کو آنا نصیب عطا فرما، میرے بہن بھائیوں کے بیوی بچوں کو آنا۔ یا اللہ جس نے سلام کے لیے کہا ان سب کا سلام وہ خدا کے حاضری دیں اور اپنے نبی کو سلام بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ الوداع۔ یا اللہ میں اس دفعہ الوداع یا رب، اور مجھے جلد سے جلد واپس لے کر آنا یا اللہ، مجھے جلد سے جلد۔ آمین۔ بس جا رہا ہوں، کچھ لمحے اور رہ گئے مدینہ میں، میں جاؤں گا، شاور لوں گا، احرام پہنوں گا اور انشاءاللہ عمرے کے لیے نکل جاؤں گا، بڑے عمرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں میری حاضری کو قبول عطا فرمائے، اپنے نبی کے بارگاہ میں میری حاضری کو قبول عطا فرمائے، میرے بیوی بچوں کی عبادتوں کو، نماز و نفلوں کو، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت ان کو قبول عطا فرمائے، یا اللہ ان کو قبول عطا فرمائے، یا اللہ ان کو قبول عطا فرمائے، یا اللہ 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 نبی کے روزے مبارک
मुबारक से जा रहा हूँ वापस से कबूल अता फरमाए। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। रास्ते में हमें भूख लगी तो हमने सबसे पहले अलबैक खाने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मदीने में निकलते ही सबसे पहले अलबैक गए और वहाँ से अलबैक का ब्रोस लिया। आप जब भी मदीने आए और आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो तो आप मुदस्सिर ट्रांसपोर्टेशन को कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर है 966592763142। माशाल्लाह इनके पास 8 सीटर वैन है जिसमें आपका सामान आसानी से आ सकता है। उसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखा। फिर हम मीकात पर पहुंच गए। मदीना की मीकात का एड्रेस है 25186704 अलवादी अलमुबारक जुल हुलैफा मदीना 42393 सऊदी अरेबिया। हम अपना फर्स्ट स्टेप वहां पर शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले उम्रे की नियत की, 2 नफल पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मीकात पे एहराम बांध कर उम्रा की नियत से जा रहा हूँ। इसे कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली तो हम यहाँ से निकले। ये मस्जिद बहुत ही बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह मीकात वाली। फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक पढ़ा और फिर उसके बाद अपनी दुआ मांगी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हमने अपना सफ़र वहाँ से शुरू कर दिया। जब आप रास्ते में होते हैं तो आप रास्ते में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते जाएँ और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और अपने सफ़र में अल्लाह ताला का जिक्र करें। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। हम मक्का रात में पहुंचे थे। बड़ा उम्रा सिर्फ मैंने और खदीजा ने किया और पापा जी ने। बाकी सब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बड़ा उम्रा कर सकते। बड़ा उम्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मदीना से जब उम्रा करने जाते हैं तो यही बचपन से सुनते आए हैं कि इसका सवाब एक हज के बराबर है। और मैंने आज ये उम्रा अपनी अम्मी के नाम से किया है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका अजर और सवाब अम्मी को पहुँचाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे इंशाअल्लाह ताला। आमीन से आमीन। ऑलमोस्ट पहुँच गए काबे के पास। हरम में अभी दाखिल होने वाले हैं। ये देखिए आपको हरम दिखाते हैं हम सामने से। एक्साइटेड हैं खदीजा अपने दूसरे उम्रे के लिए? जो बड़ा उम्रा है अल्लाह ताला इसका अजर हम दोनों को दे और हज का सवाब पहुंचाए हमें। जैसा कि मैंने सुना है कि बड़ा उम्रा करना का अजर सवाब जो एक हज के बराबर है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप हरम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले काबे पे जब भी आपकी नज़र पड़ती है तो जो भी आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करता है। तो इसी तरह मैंने और खदीजा में काबे को देखा और अपने लिए खूब दुआएं मांगी।
2 नफल पढ़ेंगे और अपना सेकंड स्टेप तवाफ शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना उम्रा शुरू करते हैं हजर अस्वद के सामने ग्रीन लाइट से। आप शुरू करते हैं, आपने काबे के साथ चक्कर लगाने हैं। इसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। उम्रे की बुक्स मिलती हैं जिसमें आप 7 चक्कर की मुख्तलिफ दुआएं मौजूद होती हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप वही पढ़ें। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कोई भी दुरूद शरीफ आप 7 चक्कर में पढ़ते रहें। तीसरा कलमा पढ़ें और इस्तग़फ़ार करते रहें। ये आप इस तरह 7 चक्कर आप लगाएंगे इंशाल्लाह। हमने तवाफ़ ख़त्म कर लिया है, अपने मुतज़िम की दुआ कर लिया। अभी हम जाएंगे मक़ाम इब्राहीम पे, वहाँ पर दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर अपनी सही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। काबे को भी नहीं छू सकते क्योंकि हमने सही कदम नहीं किया। थर्ड स्टेप है 2 रकात नफिल मकाम इब्राहीम के पास पढ़ना। जब आपका तवाफ़ ख़त्म हो जाता है तो आपने शुक्राने के 2 नफल पढ़ने होते हैं मकाम इब्राहीम पे। ये बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ आपको मौका मिले नफल पढ़ने का। वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं मिल सका, बिल्कुल वहाँ पर बहुत रश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सही का एक हिस्सा पूरा हो गया, तवाफ़ मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना खदीजा को भूख लग रही थी तो कुछ चॉकलेट वगैरह खाने आई है। हम लोग यहाँ नफल पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह मकाम इब्राहीम के। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठेंगे, काबे को देखेंगे, अपने दिलों के अरमान अल्लाह ताला से शेयर करेंगे, दुआएं मांगेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सही के लिए जाएंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह। ये आपका थर्ड स्टेप ख़त्म हो गया। सबसे पहले आपने नियत की थी, फिर उसके बाद आपने तवाफ़ किया। आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्थ स्टेप है अब आप ज़मज़म पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिफ्थ स्टेप है हमारा सही सफ़ा मरवा की तरफ जाना और अपनी सही को शुरू करना। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी है, माशाल्लाह काफ़ी रौनक है। और मक्का मदीना में आप जब भी गए 24 घंटे में जिस वक्त भी आप मौजूद हों तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत और रौनक डाली हुई है। उसी तरह रौनक और बरकत मौजूद होती है हर वक्त। आप रश देखें और रौनक देखें, मक्का पाक की बरकतें देखें। माशाल्लाह आप अपना उम्रा सफ़ा से शुरू करते हैं और मरवा पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर भी 7 ही चक्कर होते हैं। पहला सफ़ा से पहला चक्कर शुरू होता है और मरवा में आपका 7वां चक्कर ख़त्म होता है। सही जब इस तरह बीच में ग्रीन लाइट आती है तो मर्दों को भागना पड़ता है, औरतों को इसमें भागने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसके दौरान दुरूद शरीफ पढ़ें, थर्ड कलमा पढ़ें, अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करें और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और रिश्तेदारों के लिए, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ मांगे अल्लाह सुब्हाना ताला से। अल्हम्दुलिल्लाह आपका 5वां स्टेप पूरा हो चुका है। छठा स्टेप है कसर करना, यानी बालों का कटवाना। फर्स्ट स्टेप आपकी नियत थी, सेकंड स्टेप तवाफ़ था, थर्ड स्टेप आपके नफल थे, फोर्थ स्टेप आब ज़मज़म का पीना, फिफ्थ स्टेप सही का पूरा होना और छठा स्टेप है कसर करना। ज़रूरी नहीं है कि आप गंजे ही हों या पूरे सर के बाल कटवाएं। आप अपने सर के 1/4 हिस्से के बाल भी कटवा सकते हैं। और लेडीज़ के लिए जो उंगली की 3 सेक्शंस होते हैं उनमें से एक सेक्शन जो है उसके मुताबिक आप उनके लिए बाल काट सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले उम्रे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बता चुका हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेल पता करनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सही मुकम्मल हो गई मेरी और खदीजा की। बहुत टायर्ड हुए मैं, फजर का टाइम है, रात को 12 साढ़े 12 आए थे और अब फजर पढ़ के फारिग हुए हैं। पूरे हालत हुई भी टांगों की, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द है। वो चला नहीं जा रहा मुझसे, तो एक कदम भी नहीं रखा जा रहा। थक गया हूँ, पहले ही तबीयत सही थी, 2-4 दिनों से बुखार था, खांसी थी, लेकिन हिम्मत कर रहा था। तो अभी उम्रा किया है, अल्लाह ताला से कबूल करे। हम सब मम्मी खदीजा ने बहुत हौसला किए रखा है बाबा के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अच्छे से उम्रा किया। अल्लाह से कबूल करे आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद हम गए काबे के पास उसका छूने के लिए, उसको चूमने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका भी हमें मिला, मैंने हजर अस्वद को भी चूमा। रश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका, मेरा और खदीजा का उम्रा कबूल और मंजूर करे इंशाअल्लाह, और आप सबको आना मंजूर करें और मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और हमारे सर पे उनका साया कायम रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला अब्बू को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और उनके बच्चों को जल्द से जल्द मक्का की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। मेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, पर अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत पर रश्क आता है कि मुझ जैसे गुनहगार को ऐसे नवाज़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भूख लग रही थी, अभी क्या नाश्ते में खा रहे हो?
मुतब्बक खा रहे हरम के सामने बैठे हुए अभी मुतब्बक खा रहा हूँ। ये देखे मक्का टावर, ये है मक्का टावर के नीचे बैठे हुए खाना खा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आखिर में यही दुआ है आप सबको आपके वालिदैन के साथ ईमान और तंदुरुस्ती और खैर के साथ बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे। बार बार मुझे और मेरे वालिदैन और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।